دیتا ہوں یہاں پر. تو یہاں پر آ جائیں ڈورز پہ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب مختلف ڈورز ہیں یہاں پر ہمارے پاس. یہ دیکھیں تو ریسیڈینشیل ہمیں چاہیے. اب ریسیڈینشیل میں آ جائیں. یہ دیکھیں اب یہاں سائڈ پہ پکچر میں دکھا رہا ہے. یہ دیکھیں یہ مختلف کچھ ڈورز ہیں یہاں پر. ایک ایک کر کے چیک کرتے جائیں. تو میں فرض کرتا ہوں اس میں سے ایک ڈبل وہ پک کر لیتا ہوں. یہ ہو جائے گا. یہ اگر میں لے لوں یہ والا اوپن کر لیتا ہوں. اس کو جب آپ اوپن کر لیں تو اس کا بھی وہی طریقہ ہے کہ فرض کرتے ہیں اس کی یہ ہے اس کی لینتھ وڈتھ جو ہے وہ 5 فیٹ ہے. تو اس کو آپ پہلے ایڈٹ ٹائپ پہ آ جائیں. ڈپلیکیٹ کر کے اس کو میں D1 کا نام دے دیتا ہوں. یہاں پر آ جائیں. وڈتھ 5 فیٹ ہے. اگر آپ 6 کرنا چاہتے ہیں 6 فیٹ کر دیں. ہائٹ اگر آپ اس کی 7 فیٹ کرنا چاہتے ہیں 7 فیٹ کر دیں. بس یہ آپ کا اس کے ساتھ کام ہوگا. ٹھیک ہو گیا نا. اب میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں. یہاں پر آ جاتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کا جو ڈور ہے وہ اس طریقے سے یہاں پر لگ جائے گا. اگر 3D میں چیک کرنا چاہیں 3D میں بھی چیک کر سکتے ہیں. یہاں پر آ جائیں تو یہ دیکھیں آپ کا ڈور اس طریقے سے لگ جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. اچھا یہ تھوڑا سا یہاں سے اوپر ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا نیچے رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کو اوپر نیچے کرنے کے لیے آپ اس کو یہاں پر لکھ دیں. میں فرض کرتا ہوں -1 فیٹ کر دیتا ہوں. 1 فیٹ کر کے اس کو جیسے ہی میں نیچے لاتا ہوں تو اس طریقے سے آپ کے پاس نیچے آ جائے گا. تو یہ سیل ہائٹ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی چاہیے. کس طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ آپ اس میں اس طریقے سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں جس طریقے سے آپ کو ریکوائرڈ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے بعد ایک یہ دروازہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد میں اس طرف بھی آتا ہوں. یہاں پر جو ہے سب سے پہلے میں 3D میں چلا جاؤں گا. اب نیچے کے چونکہ ہم ڈورز لگا رہے ہیں تو ابھی ہم اس میں ہمیں دیکھیں گے نہیں. تو پھر میں کیا آتا ہوں یہاں پر نیچے آ جاتا ہوں. یہاں دیکھیں ایکسٹینس میں آپ کے پاس ہے سیکشن باکس. سیکشن باکس کو آن کر دیں. یہ آپ کا سیکشن باکس ہے. فرنٹ پہ اس طرح کر دیں یا پھر اس گزمو پہ کلک کر دیں اس طریقے سے. جیسے ہی برابر ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے لیں سیدھا نیچے لے آئیں اور دوبارہ اس کو لیں اور اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے نیچے کر لیں. تو یہ آپ کی یہاں سے کٹنگ ہو جائے گی. اب ہم یہاں پر جتنے بھی ڈورز ونڈوز لگائیں گے وہ آپ کو دکھائی پڑیں گے. تو میں یہاں پر دوبارہ آ جاتا ہوں. آج ہم سٹیئرز بھی اس میں بنائیں گے. یہ بھی میں ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا یہاں پر ہمارے پاس ایک ڈور ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں یا ڈور میں آ جاتا ہوں. تو یہاں پر تو مختلف کچھ ڈورز ہیں لیکن اگر آپ کو تھوڑا اچھا چاہیے تو لوڈ فیملی میں دوبارہ چل جائیں. اس میں دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس کچھ اچھے ڈورز موجود ہیں. مجھے یہ چاہیے میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں. اچھا اس کی جو وڈتھ ہے اگر 3 فیٹ ہے آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈٹ ٹائپ پہ آ جائیں. پہلے اس کو میں اب D2 کے نام سے اس کو میں ڈپلیکیٹ کر دیتا ہوں. وڈتھ میں اس کی رکھتا ہوں 3 فیٹ کر دیتا ہوں. یہ ہو جائے گا. ہائٹ میں اس کی وہی 7 فیٹ کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں. تو اب میں یہاں پر آتا ہوں تو یہ دیکھیں اسی وجہ سے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہاں پر ہم وال بنا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جب آپ کی وال ہوگی تو ریوٹ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ آپ یہاں پر ونڈو یا ڈور لگا سکتے. اگر آپ کے پاس یہ وال نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کو یہ کرسر پہ یہ جو نشان آ رہا ہے اس طریقے سے شو کرے گا. تو اس طریقے سے ادھر آ جائیں. اس کو ادھر ایڈ کر دیں. اب فرض کرتا ہوں کہ میں اس کو ادھر چیک کرنا چاہتا ہوں تو آپ ادھر آ جائیں. اس کو چیک کر لیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا ڈور بالکل ایگزیکٹ لوکیشن پہ آپ کا سیم آ جائے گا. یہ دیکھیں آپ یہاں سے بھی آپ کو دکھائی دے جائے گا. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کا ڈور آ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوبارہ میں ادھر آ جاتا ہوں اس میں اور کچھ اور بھی ڈورز ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر یہ والے ہیں. یہ والے ڈورز ہیں ہمارے پاس. تو میں کیا کرتا ہوں ایک تو یہی ڈور کو میں لیتا ہوں CS کر کے اس کو میں ادھر لے آتا ہوں. اسی ڈور کو میں ادھر بھی پلیس کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پر ہے چونکہ یہاں پر بھی ایک ڈور ہے. تو اگر اس کی واش رومس کی چونکہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں 2 فیٹ اور 6 انچ کی ٹائپ پہ آ جائیں. اسی کو لے لیں ڈپلیکیٹ کر کے D3 کر دیں. اور اب آپ کو چاہیے 2 فیٹ اور 6 انچ چاہیے تو اس کو ایڈ کر دیں. اوکے کر دیں اس طریقے سے. ادھر آ جائیں تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی جو ڈور کی جو لینتھ ہوگی یا ویڈتھ ہوگی وہ بالکل ایگزیکٹ ہو جائے گی. یہ ہو جائے گا. اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں تو کچھ سلائڈنگ جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر ایک ہے بڑی ونڈو ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ لگا لیتے ہیں. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اس سائڈ پہ بھی ہماری ایک ونڈو ہے جس طریقے سے اس سائڈ پہ ہے. کچھ ایک دروازہ یہاں پر بھی ہے تو اس کو بھی میں ادھر لے لیتا ہوں. وہی والا جو 2 فیٹ والا میں نے یہاں پر لگایا تھا CS کر کے دوبارہ یہاں پر آ جاتا ہوں. اب اس کی تھوڑی سی زیادہ یعنی یہ 3 فیٹ فرق کرتے ہیں تو میں اس کو
दोबारा डुप्लिकेट करके D3 कर देता हूँ, एंटर। सॉरी, इसको मैं दोबारा D4, बल्कि वो D3 हो चुका है, ओके कर दिया। तो इसको अब मैं 3 फीट का दे देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपका इस तरीके से एग्जैक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बचते हैं यहाँ पर कुछ, ये है कुछ स्लाइडिंग या फोल्डिंग डोर्स हैं। तो अच्छा, इसके लिए मैं एक वेबसाइट आप लोगों को बता रहा हूँ, और वहाँ पर आप लोग अपने अकाउंट बना लें, और फिर उस तरतीब से आप जो भी चीज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। जैसे मैं इधर आ जाता हूँ, तो ये देखिए, ये वाली वेबसाइट का नाम होगा, ये है जी बिम ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया, इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर आ जाएं, तो बिम ऑब्जेक्ट को जैसे आप ओपन करेंगे, तो मैंने इस पर साइन अप किया हुआ है, तो ये इस तरीके से ओपन है। अब मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट करता हूँ फोल्डिंग, या सबसे पहले मैं स्लाइडिंग विंडो पहले इस पर कर लेता हूँ, सर्च करता हूँ। सबसे पहले स्लाइडिंग विंडो पे मैंने यहाँ सर्च में लिख दिया, तो ये देखें बहुत सारी आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक हो गया। जैसे जो आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपको चाहिए हो, मुझे इनमें से मैं देखता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी की अपने प्रोजेक्ट के मुताबिक लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगे या जो आपको पसंद हो। मैं देखता हूँ कि इसमें कौन सी ये वाली ठीक रहेगी। फ़र्ज़ करते हैं ये वाली मुझे चाहिए, तो इसको मैं यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कर लेता हूँ, या नीचे आ जाए डाउनलोड ऑल कर दें, तो डाउनलोडिंग इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। मैं यहाँ डाउनलोड्स पे चला जाता हूँ। जैसी डाउनलोड हो जाएगी, तो फिर आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर इस पर डबल क्लिक करें, फिर दोबारा इस पर क्लिक कर दें। तो ये देखिए, जिसके ऊपर रिवेट का जो जो आइकन बना होगा, उसी के ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इस तरीके से आ जाएगा। अब ये मॉडल पुराना है इस दरवाजे का, तो ये 2021 में आ रहा है, चूँकि 2020 का है, तो ये आपसे ये इजाज़त मांगेगा अपग्रेड द मॉडल, तो हम अपग्रेड द मॉडल पे क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। तो जैसे ये अपग्रेड मॉडल पे करेगा, तो थोड़ी सी लोडिंग के बाद आपके पास दरवाजे की पहले एक 3D ऑन होगी, जो अभी ये करेगा। आपके लिए इस तरीके से एक दरवाज़ा की 3D ओपन या रेफरेंस लेवल ओपन होगा। तो आप इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज कर दें। तो मैं इसको प्रोजेक्ट में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस तरीके से इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट क्लोज भी कर सकते हैं, और जस्ट लोड इनटू प्रोजेक्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। ठीक हो गया ना। तो मैं पहले, सबसे पहले इसको मैं यहाँ पर लगाना नहीं चाहता, बल्कि मैं पहले इसको यहाँ पर मैं कहता हूँ कि 7, ये तो टोटल इन्होंने बताया है 15 फीट और 6 इंचज़ की विड्थ है। तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा, इसको मैं नाम दे देता हूँ स्लाइडिंग विंडो 1 के नाम से। मैं इसको डुप्लिकेट करता हूँ, तो यहाँ पर नीचे आ जाएं, तो ये देखिए आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन वेट है, हाइट है। आपका जो काम होगा ये हाइट के साथ होगा। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ आ जाए, तो ये सिंपल जो वेट है, ये देखिए आप 19 फीट और 8 इंच समथिंग है, तो मैं इसको 15 फीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो बाकी की जो ये रफ मफ वो है, वेट है, हाइट है, उसके साथ आपका काम नहीं है ना, वो ये क्लिक आप करेंगे भी तो नहीं लेगा। तो ये जब आप कर देंगे, और हाइट अगर आप इसकी रखना चाहते हैं, जस्ट 7 फीट रखते हैं, तो जस्ट 7 फीट कर दें। ठीक हो गया। इसको मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर चेक करते हैं, अगर ये इसमें एडजस्ट नहीं होगा, तो थोड़ी हम इसको और कम कर लेंगे, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। इधर मैं इस तरीके से इसको, मैं इधर इसको प्लेसमेंट दे देता हूँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 3D में अगर चेक करना चाहूँ, तो ये इस तरीके से आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर मुख्तलिफ लेवल्स के हमने वो लगाए हैं, ये जो फ्लोर्स हैं वो लगाए हैं। तो फिर आप इधर क्लिक कर दें, सेल हाइट अगर हम इसको देना चाहें, तो ये सेल हाइट है, अब ये माइनस में जा रहा है, तो आप इसको 1 फीट कर दें ऊपर और अप्लाई करके चेक करते हैं, तो इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास कुछ फोल्डिंग डोर्स वगैरह हैं, तो मैं दोबारा उसी पे चला जाता हूँ। जो जो बिम ऑब्जेक्ट से मैंने किया था, मैं वापस आ जाता हूँ। अब मैं इस पे चेक कर लेता हूँ कि इसमें हमें वो मिल जाए फोल्डिंग डोर्स। मैं फोल्डिंग डोर्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर सर्च करके यहाँ मैं आ जाऊँ, तो ये देखें फोल्डिंग डोर्स में हमारे पास देखते हैं कुछ इस तरीके से हो। सर्चिंग कर लेते हैं। ये है लाइन फोल्डिंग डोर्स है। ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए, वहाँ पर फिर आपके लिए तकलीफ़ हो जाएगी। आपने क्या करना है कि फिर दोबारा यहाँ पर आकर वो करना है। तो कुछ फोल्डिंग डोर्स अच्छे वाले मैं देखता हूँ, जो जिनकी विड्थ कुछ बेहतर हो। ये मुझे ठीक लग रहा है, या ये वाला ले लेते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं इसी कोई। डाउनलोड ऑल पे क्लिक करते हैं। मैं दोबारा
बल्कि डाउनलोड्स में आ जाता हूँ। इस तरीके की कुछ डोर्स विंडोज़ आप इससे ला सकते हैं इसके अंदर। ये मैं करता हूँ, फिर उसके बाद हम चलते हैं अपनी स्टेयर्स की तरफ। इधर में आ गया, दोबारा इसको मैंने क्लिक करके ओपन कर दिए, तो ये देखिए इस तरीके से आपको ये शो करेगा जिस पे रिवेट का आइकन होगा। इस पर मैं क्लिक करके अपग्रेड द मॉडल कर देता हूँ। चेक करते हैं यहाँ पर, योर मॉडल इज़ बीइंग अपग्रेडेड। उसी तरीके से या तो रेफरेंस लेवल खोलेगा या इस तरीके से आपके लिए खोलेगा। तो मैं इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ये प्रीव्यू दिखाता होता है इस तरीके से। आप देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो जो विड्थ है वो कितनी है। चेक करते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। ये देखिए इस तरीके से शो कर रहे हैं। तो विड्थ कितनी थी यहाँ पर, 11 फीट जो है, 3 फीट इस साइड से छोड़े हुए हैं, 3 फीट इस साइड से, और बीच में 11 फीट है। तो मैं इधर आ जाता हूँ सबसे पहले एडिट टाइप में, और इसको मैं फोल्डिंग डोर के नाम से मैं, या फोल्डिंग डोर 1 कर देता हूँ इसको मैं, ओके करके। और अब मैं इसकी जो है विड्थ कितनी थी यहाँ पर हमारे पास, 11 फीट थी। तो मैं इसकी विड्थ यहाँ पर आ जाता हूँ, तो ये देखिए 14 फीट है, तो मैं इसको 11 फीट कर देता हूँ। हाइट अगर आप इसकी यही रखना चाहते हैं यही रख लें। सिर्फ 7 फीट करते हैं, 7 फीट मैं इधर कर देता हूँ। ओके, जो नॉर्मल यहाँ पर हमारे यहाँ पर यूज़ होती है, या डोर्स जो लगते हैं 11 फीट के वो होते हैं। तो मैं इसको इधर ओके करके अब चेक करते हैं। डुप्लिकेट करना आपके लिए ज़रूरी होगा वैसे, क्योंकि ओरिजिनल एक दफ़ा तो लग जाता है, फिर उसमें मज़ीद एडिटिंग थोड़ी मुश्किल से होती है। तो डुप्लिकेट हम करते हैं, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। ये देखिए आप, ये इसको चेक करते हैं इस तरीके से, अंदर की जानिब बाहर की जानिब, इसको मैं यहाँ लगाता हूँ। अच्छा, एक ये वाला एरिया था, और हमारे पास, या पहले इसी को ही लगा के चेक कर लेते हैं, 3D में चले जाते हैं। अच्छा, अब ये इस तरीके से ऊपर की जानिब आ रहा है, तो सॉरी नीचे जा रहा है ज़्यादा, तो आप इसको सेल हाइट दे दें, इधर क्लिक कर दें, 1 फीट का सेल हाइट दे दें। चूँकि हमने मुख्तलिफ उस पे लेवल्स पे हमने जो है ना वो ऐड किए थे, फ्लोर ऐड किए थे, तो उस वजह से ये कर रहा है। तो ये देखें इस तरीके से आपकी जो जो डोर्स हैं वो इस तरीके से आपके आ जाएंगे। फोल्डिंग, ये जो एरिया आप देख रहे हैं रेड लाइन वाला, ये आपका जब दरवाज़ा खोलेगा तो ये इस साइड पे सारा इकट्ठा इस तरफ से ओपन हो जाएगा। तो आपका जो हैंडल है वो ये वाला होगा। ठीक हो गया। तो इस तरीके से कुछ विंडोज़ और डोर्स यहाँ पर आपके ऐड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल से बस ये इतना काफ़ी है, डोर्स और विंडोज़। आप बाकी में आपके लिए आसान है। मैं फर्स्ट फ्लोर पे भी एक सामने की तरफ लगा लेता हूँ, सॉरी यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर स्लैब पे। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारे पास एज इट इज़ सेम ही है, इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है। वायर फ्रेम कर दें, यहाँ पर फर्श करते हैं, यहाँ पर एक विंडो है, दो यहाँ पर हैं। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर दोबारा चला जाता हूँ। यहाँ पर भी कुछ विंडोज़ हैं, तो इनके लिए तो हमें इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ विंडो पे आ जाएं, और इसमें से कोई एक विंडो ले लें, और इसको आप नाम दे दें विंडो विंडो 1 के नाम से मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से। और हाइट कितनी रखना चाहते हैं, 6 फीट है जितनी भी है तो वो करना चाहते हैं। विड्थ 3 फीट है, 3 फीट कर लें, ओके कर दें। यहाँ पर आ जाएं तो ये देखें इसकी, इस पे इधर एक ऐड कर दें। ठीक हो गया। एक इस साइड पे है, इधर ऐड कर दें। एक ये हो गया आपका, ये साइड हो गया। अच्छा, और चेक करते हैं ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे आज स्लैब पे आप आ जाएं तो यहाँ पर आपकी एक बड़ी विंडो है, एक यहाँ पर है। तो एक इधर इस साइड पे मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ठीक हो गया। एक ये साइड हो जाएगा, इधर मैं ऐड कर देता हूँ ये वाली। थोड़ा अच्छा इसका जो है लुक बनना स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए। एक इस साइड पे आ जाएगा। अब 3D में इनको चेक भी करेंगे साथ ही साथ। अच्छा, ये एक विंडो थी, इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसकी कितनी थी, 6 फीट थी ना, तो इसी विंडो को आप ले लें, विंडो को डुप्लिकेट कर दे, आप लिख दें विंडो 2 के नाम से मैं कर देता हूँ। तो कितनी इसकी थी, 6 फीट वेट थी। तो इधर आ जाएं इस पर, और 6 फीट ऑलरेडी नहीं बल्कि वेट इसकी 3 फीट है, तो मैं इसको 6 फीट कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ यहाँ पर।
तो ये देखिए इस तरीके से आपका ऐड हो जाएगा। अच्छा एक यहाँ पर हो जाएगी, एक यहाँ पर है, तो इसको मैं विंडो वन ले लेता हूँ। ये आपका जो वाशरूम्स का जो है इसको आप ऊपर इस तरीके से कर लें। अच्छा ये हो जाएगा। उसके बाद ये वाला एरिया भी है, ये भी है, तो ये मैं, अच्छा ये वाला हमारे पास रहता था, इसके लिए वही वाली मैं विंडो लगाऊंगा जो हमने नीचे लगाई थी बड़ी वाली। तो मैं उसी पे ही आ जाता हूँ। एक मिनट, उधर ही रोड लेवल पे जाके, चूँकि ये मेरे ख्याल से सही तरीके से लोड नहीं हुई, इसको सी एस कर दें। सी एस करने के बाद इधर आ जाएँ, इस तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, जो जो आपका जो तरीका हो या जिस तरीके से भी आप करना चाहिए। देखिए इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये तो अब हम चेक करना चाहते हैं जो जो हमने लगाई थी, तो यहाँ पर आ जाएँ, ये इस तरीके से ऐड है, ये हो गया। अब बाकी तो हमने सेक्शन बॉक्स लगाया था, मैं पहले सेक्शन बॉक्स को ऑफ कर दूँ, तो जो हमने लगाए थे इस तरीके से आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा ये तो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट आ गई ना लोकेशंस पे। अब ये काफ़ी बड़ी है और वाशरूम्स की है और हमने इसको ऐड करना है, तो आप इधर आ जाएँ। इसकी सबसे पहले तो जो हाइट है वो ख़त्म कर दें। हाइट फीट आप इसकी 3 फीट करके चेक कर लेते हैं, और विड्थ जो है 3 फीट ही काफ़ी है, ठीक रहेगी। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको सेल हाइट दे दें, इसको फर्ज करते हैं 6 फीट की मैं सेल हाइट दे देता हूँ, तो ये इस तरीके से ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा ये वाली जो साइड था हमसे रह गई है, मैं इधर ही दोबारा चला जाता हूँ और इधर मैं आ जाता हूँ इस एरिया में। तो इसके लिए मैं विंडो लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं पहले विंडो में आ जाता हूँ। अब की बार हम लोड फैमिली से एक विंडो ले लेते हैं, पिक करते हैं। यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, यहाँ पर देखें विंडोज़, विंडोज़ पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें आपके पास मुख्तलिफ विंडोज़ हैं, जो भी आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी की पिक करना चाहें। ये हो गया। तो मैं इसको पहले आपको सारे यहाँ पर साइड पे देखते जाएँ, आपकी मुख्तलिफ विंडोज़ हैं। इससे अगर डाउनलोड का, इससे अगर आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर इससे आपको एक भी पसंद नहीं है, या आप कहते हैं कि मैं बिम ऑब्जेक्ट से करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बिम ऑब्जेक्ट में दोबारा चला जाता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल एक विंडो में स्लाइडिंग विंडो या सिंपल विंडो में इधर कर देता हूँ सबर। यहाँ पर दोबारा मैं आ जाता हूँ इधर सर्चिंग में, विंडो, विंडो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आ जाए, देखिए आपके पास मुख्तलिफ विंडोज़ हैं। तो इसको मैं डाउनलोडिंग पे इसको लगा लेता हूँ यहाँ पर। शायद साहब अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नहीं सर, नहीं है कोई क्वेश्चन। अच्छा ये क्योंकि मैं उस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा उसके बाद ये हो गया, इधर में आ गया विंडो में, ये हो गया, फिर इधर आ गया अपग्रेड द मॉडल। ज़्यादातर पुरानी जो होते हैं, अब ये रिवेट 2018 की जो विंडो है मैं इसमें ला रहा हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली जितना लेटेस्ट आपका होगा वर्जन, उतना ये खुद ही मॉडल अपग्रेड हो जाएगा। प्रीव्यू ओपन करेगा इस तरीके से, और मैं इसको लोड इनटू प्रोजेक्ट, या सबर मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट और क्लोज कर देता हूँ इस तरीके से। अच्छा ये इधर आ रही है, और मेरे ख्याल से बल्कि 8 फीट और 6 इंचज़ की वो है, तो मैं इधर इसको विंडो विंडो 5 कर देता हूँ। और इसकी जो विड्थ है वो वहाँ पर कितनी लिखी है, 8 फीट और 6 इंच है, तो विड्थ हमें इसकी चेंज कर देता हूँ। विड्थ ऑफ विंडो हमारे पास है 8 फीट और 6 इंच विंडो की वो है विड्थ है, तो बस मैं वही चेंज करता हूँ। बाकी सेल हाइट फिर हम देख लेते हैं जब 3D में इसको चेक करते हैं, तो उस हिसाब से दे देंगे। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर, एक मिनट, ये मुझसे लगता है आगे पीछे हो गई है, इसको मैं क्लिक करके इधर देखने,
سے اس کی زیادہ ہے جو وہ ہے، اس کو میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں، صرف 8 فیٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ آٹو کیڈ کی فائل اور ریوٹ کا یہ تھوڑا سا فرق اس میں ہو جاتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز اس میں ایڈ کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جوائنٹس میں آپ کو بتا دیتا ہے کہ اس کی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو اسی کو ہی میں لے لیتا ہوں، بلکہ یہاں پر آ جائیں تو یہ دیکھیں اب یہاں پر بھی ایک ہے 9 فیٹ کی، تو اسی کو ہی میں لے لوں، سی ایس کر لوں، ادھر ایڈٹ ٹائپ میں آ جاؤں، تو میں ادھر کتنی ہے اس کی 8 کتنی تھی 9 فیٹ تھی، تو میں ادھر آ جاؤں، اس کو میں 9 فیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو گیا، اوکے کر دیتا ہوں، اسی کو ہی سی ایس میں نے کیا ہے۔ اچھا ہاں وہ یہ والی جو ہے اس کے ساتھ ہم چیک کر لیتے ہیں ادھر پہ ایک نظر، میں نے اس کو ڈپلیکیٹ نہیں کیا تب یہ نہیں ہوا، اس کو میں ایڈٹ ٹائپ کر کے اسی کو ہی میں دوبارہ ڈپلیکیٹ کر کے ونڈو 6 کے نام سے اس کو میں کر دیتا ہوں، اور اب کی بار میں یہاں پر اس کو 8 فیٹ کے بجائے اب اس کو میں 9 فیٹ پہ کرتا ہوں، 9 فیٹ، تو اب ہو جائے گا 9 فیٹ پہ ایگزیکٹ، تو یہ اس طریقے سے ایڈٹ ہو جائے گا، یہاں پر 3D میں آ جائیں تو چیک کر سکتے ہیں ہم، یہ ہو گیا یہاں پر آپ کی ایک ونڈو یہ ہو گیا، اچھا یہاں پر ایک وہ دوسری بھی لگتی ہے وہ بڑی والی، اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں، ادھر میں آ جاتا ہوں دوبارہ بیم آبجیکٹ میں ایک اچھی والی ادھر میں لگا لیتا ہوں، میں بیک آ جاتا ہوں، دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بڑی اچھی ورائٹی کی چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر ہمارے پاس، یا میں یوں کہوں گا کہ یہ والی ہم نے کی تھی ابھی، کون سی والی کی تھی میں ادھر ڈاؤن لوڈ میں دیکھوں، S900 ڈبل، یہ والی نہیں چاہیے، ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کچھ اور بھی ونڈوز ہوں گی، یا سلائڈنگ ونڈو کر لیتے ہیں، یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں سلائڈنگ ونڈو، ہاں یہ اب ٹھیک رہے گا، تو اس کو میں ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں یہاں پر، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس بیلکنی ہے تو اس وجہ سے میں نے یہاں پر لے لیا، تو اس کے لیے کافی اچھا رہے گا، اچھا یہ 9 فیٹ ہے، اس کو میں ایڈٹ کر کے سلائڈنگ ونڈو، اور 9 فیٹ اس کی ویڈتھ تھی، تو یہ جو اس کی رف ویڈتھ اور ہائٹ ہے یہ چونکہ ہم نے امپورٹ کی ہوئی ہے تو یہی ہمیں یہی والا آپشن اویلیبل ہے، تو میں 9 فیٹ اس کی ویڈتھ کر دیتا ہوں، تو یہ آٹومیٹکلی جو آپ یہاں پر چینج کریں گے وہ بھی ہو جائے گا، اوکے کر دیتے ہیں، یہاں پر چیک کرتے ہیں اسٹل ہائٹ اگر دینی پڑی تو پھر ہم 3D میں چیک کر کے وہ بھی دے دیتے ہیں، ادروائز اتنی خاص ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ ہمیں، تو میں ادھر 3D میں آ جاتا ہوں دوبارہ، تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ کی آ جائے گی، لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا اپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں لکھ دیں اسٹل ہائٹ، اگر آپ 1 فیٹ فرض کرتے ہیں اٹھانا چاہتے ہیں اوپر کی طرف تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اس طریقے سے، لیکن چونکہ یہاں پر تو بیلکنی ہے تو اس کی میں اسی کو دوبارہ وہ کر لیتا ہوں، 0 کر دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اس کی تھوڑی ہائٹ بڑی ہو جائے، تو ادھر یہ ایڈٹ ٹائپ میں آ جائیں، 7 فیٹ ہے آپ اس کو 8 فیٹ کر دیں، وہ زیادہ مجھے میرے لحاظ سے اچھا ہو جائے گا تھوڑا سا اس طریقے سے، تو اب یہ ٹھیک رہے گی، ٹھیک ہو گیا، تو یہ باقی جو ڈیزائننگ ہے نا وہ یہ والی وہ اب آپ کی کریٹیوٹی ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، یہاں سائڈ سے وال لاتے ہیں ایکسٹروژن کمانڈ سے اس کے اوپر چھت بناتے ہیں، خیر ایکسٹروژن کمانڈ تو ابھی تک ہم نے ڈسکس ہی نہیں کی، وہ ہم کریں گے بعد میں،
अच्छा, हाँ, अभी मुझे याद आया, मैं दोबारा सेक्शन बॉक्स लगाऊंगा। अच्छा, स्टेयर्स बनाना इसमें काफ़ी क्रिटिकल होता है, क्योंकि स्टेयर्स इसमें बनाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं सेक्शन बॉक्स को पहले लगा के यहाँ नीचे आ जाता हूँ, तो आपको टेंशन लेने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं होगी। मैं आप लोगों को ऐसा तरीका बताऊंगा कि इंशाल्लाह आप लोग बना पाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपकी वो आ जाएगी ना, जो आपकी जो है, मैं बाकी की ये ज़रा ऑफ कर दूँ। फिनिश फ्लोर से ही हम बनाएंगे, ग्राउंड फ्लोर स्लैब को आप हटा दें। अच्छा, यहाँ से हम बनाते हैं अपनी स्टेयर्स। तो स्टेयर्स के लिए हम अपने फिनिश फ्लोर पे आप आ जाएं, तो यहाँ पर ये देखें आपके पास आपके मैप पे क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि 1 फीट और 6 इंच, तो जो इसका है उसी लेवल पे हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च कर, मतलब थोड़ा देखना चाहते हैं अगर ये है, तो ये देखें इधर से आप इसको, आपकी जो ये जो एक स्टेप है ये 1 फीट है। ठीक हो गया, ये जो एक स्टेप आता है 11 इंच होता है, 10 इंच होता है। 1 फीट, 1 फीट बहुत अच्छा और मैनेजेबल, हर किस्म के बंदे के लिए स्टेप इस पे रखना अच्छा होता है। दूसरी जो चीज़ है वो है आपके पास वेट, और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइज़र, कि आपका राइज़र जो स्टेप कितना उठा होता है। 6 इंच हो तो वो कंफर्टेबल है, या उससे कम हो तो भी अच्छा है। 6 इंच से जितना ज़्यादा होता जाएगा वो उतना मतलब है कि वो होता जाएगा। अच्छा, अब मैं इस वाल को हाइड करना चाहूँगा। हाइड करने के लिए एच एच आप दबा दें। अच्छा, अब मैं इधर से इसको नाप करना चाह, फर्ज कर दो मैं ऐसे तक इसको नाप करना चाहता हूँ कि कितनी है। तो मैं ये इसको यहाँ से ले लेता हूँ क्लिक करके, और यहाँ आ जाता हूँ। तो ये देखें 3 फीट और 9 इंच जो है मेरे पास यहाँ पर, जो जो ये हमारे पास इसकी विड्थ है वो आ रही है। अच्छा, अब इसमें बनाने के 2-3 तरीके हैं। क्योंकि मैंने सेक्शन बॉक्स लगाया है तो मैं इधर ही काम करूँगा, क्योंकि सेक्शन से अगर हम बाहर जाते हैं तो फिर वो नहीं चलेगा। अच्छा, मैं इसको जो मैंने हाइट किया था वो सिर्फ मैंने इधर वो डायमेंशन देने के लिए किया था। मैं इसको अगर अनहाइड करना चाहूँ तो रीसेट टेम्परेरी हाइड आइसोलेट्स, और आपकी वो जो चीज़ आपने की होगी वो वापस आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ कि जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के लिए आर्किटेक्चर आ जाए। सबसे पहले स्टेयर्स ओपन कर लें, तो स्टेयर्स में कुछ आपके पास रेडीमेड है। रेडीमेड से मुराद मेरी है कि अब ये एल शेप में एक है, मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको लें और सीधा अपने प्रोजेक्ट में लगा दें। तो ये मैं यहाँ पर लगाता हूँ, एक ये हो जाएगी यहाँ पर। हाँ। तो इधर मैं प्लेस कर देता हूँ। तो ये देखें, अच्छा मैंने जो इसको लेवल दिया फिनिश फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर स्लैब तक, तो ये अब मुझे बता रहा है कि आपके जो डिज़ायर्ड स्टेप्स हैं, मतलब जितने चाहिए 18 स्टेप्स हैं। एक्चुअल नंबर कितने, 18 ही हैं। तो ये एक्चुअल नंबर हैं। एक्चुअल थ्रेड की वो कितनी है, डेप्थ के मतलब उसकी कितनी है, तो 11 इंच ये बता रहा है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो आपके पास यू शेप में है, इसको ले लें। यहाँ पर मैं इधर ले आता हूँ, इधर यहाँ पर ये यू शेप है, तो ये भी ऑटोमेटिकली वही 1 से 18 तक ले रहा है। अगर आप कहते हैं कि अच्छा एक दूसरा तरीका है, एक स्ट्रेट, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर दें तो ये हम पहले उसको वो करेंगे, क्या नाम लेते हैं, डुप्लीकेट करेंगे। लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये इस तरीके से भी बन सकते हैं। आप इसको इधर तक लगा दें, ये हो जाएगा आपके 18 + 11, ये बता रहा है। अब मैं इसको अगर हटा दूँ, मैं इसको ग्राउंड फिनिश फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर स्लैब ले लेता हूँ इधर। ये तो ये आप देखें, यहाँ से मैंने एक ये स्टेप्स मैंने बना दिए। उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये जितना फासले पे आप बनाना चाहेंगे ये खुद ब खुद पीछे वो जो वो लैंडिंग है वो क्रिएट करेगा। लेकिन ये उस सूरत में करेगा जब आपका कनेक्शन इसके साथ यहाँ पर सही होगा, वो नहीं होगा तो पीछे ये क्रिएट नहीं करेगा। अच्छा, फर्ज करते हैं कि इस किस्म की हमें कोई स्टेयर चाहिए, तो मैं इधर ये यहाँ पर फर्ज करता हूँ, मैं इधर इसको कर देता हूँ ऐड। तो अच्छा, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम 3D में इसको चेक करना चाहें तो ये इस तरीके से आपके जो जो स्टेप्स हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, ये अब इस यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कहते हैं कि हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो इस पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आ जाएं, फ्लिप करना चाहे फ्लिप कर दें, तो ये उसके बजाय वहाँ से कंडीशन चेंज हो जाएगी इसकी, मतलब जो इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये चंद एक तरीके हैं यहाँ पर। अच्छा, एक तरीका रिवेट आपको ये भी देता है कि आप वो भी कर सकते हैं, बाय स्केच से भी बना सकते हैं।
ٹھیک ہے، 22 स्केच से बनाने का तरीका क्या है, मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि यहाँ पर फिनिश फ्लोर पे दोबारा आ जाता हूँ। तो ये इस एरिया में ये देखिए नीचे आपके पास एक पेंसिल नुमा एक बना हुआ है, तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दे तो 22 स्केच से बनाने में आपके पास तीन चीज़ें होंगी। एक होगी आपकी स्टेयर्स की बाउंड्री, दूसरी होगी राइजर्स, और तीसरा होगा स्टेयर पाथ। तो स्टेयर पाथ क्या होता है, वो जो एरो का निशान अक्सर आप ऑटोकैड में भी देते हैं, यहाँ से किस तरीके से जा रहे सीधे ऊपर, तो वो स्टेयर पाथ होता है। मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पर पहले बाउंड्री, तो बाउंड्री आप फ़र्ज़ करते हैं कि मैं इसको थोड़ा कर्व शेप देता हूँ, यहाँ तक ला कर इसको मैं छोड़ देता हूँ, और यहाँ से मैं दूसरी एक कर्व शेप देना चाहता हूँ थोड़ा सा ऊपर की जानिब। तो इस तरीके से मैं इसको या, या इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ यहाँ से, मतलब थोड़ा कर्व शेप दे देता हूँ। अच्छा, दूसरी इसी की तरीके से बनाना चाहता हूँ तो मैं इधर क्लिक कर दूंगा, उसके पहले मिरर एक्सेस के इसी तरीके की शेप दूसरी ऑपोजिट पे आ जाए तो मिरर पिक एक्सेस पे क्लिक कर दें। यहाँ पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे रेफरेंस के लिए। ये जब आपके पास आ जाएगा उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर दें, इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, एक मिनट ये मुझसे एक दफ़ा फिर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इसी मिरर एक्सेस पे क्लिक कर दें, और इस लाइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे एरिया पे भी ऑपोजिट आपका बन जाएगा। अच्छा, राइज़र मैं ले लेता हूँ यहाँ से, तो मैं इस तरीके से राइज़र लगाना चाहता। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि राइज़र के दरमियान की जो वो लेंथ होती है वो हम मतलब है इक्वल रखना चाहते हैं, लेकिन बस जल्दी जल्दी में फ़र्ज़ करते हैं बना दी, जैसे अभी मैं बना रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि फिर ये इक्वल भी होने चाहिए, तो उसके लिए भी एक कमांड यहाँ पर मौजूद है। मैं इसको फ़र्ज़ करता हूँ इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, ये इस तरीके से हो गया। और मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इस तरीके से जो जो स्टेप्स हैं वो थोड़ा इस तरीके से भी यहाँ से भी मुड़ जाएं। तो मैं दोबारा बाउंड्री को ले लेता हूँ यहाँ पर इसी एरिए से मैं इसको थोड़ा सा मोड़ देता हूँ इधर तक। ठीक हो गया, और यहाँ से इस तरीके से मोड़ के इधर तक मैं ले आया। ये जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने दोबारा बाउंड्री ले ली, इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ से भी हमारे पास है, मैं कहता हूँ फ़र्ज़ करता हूँ कि ये लैंडिंग हो जाएगी, बाकी हमारे पास वो हो जाएंगे राइजर्स। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एक एक को यहाँ पर राइजर्स लगा लेता हूँ इस तरीके से। ठीक, ये हो गया इस तरीके से, एक ये हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इनको इक्वल करना चाहता हूँ, यहाँ देखें तो डी आई अलाइन डायमेंशन, डी आई इसकी शॉर्टकट की है। अब मैं यहाँ से एक एक को इस तरीके से पिक कर देता हूँ इस तरीके से, ये हो जाएगा। अब ये देखें तो इसके साथ एक ई क्यू बना हुआ है, एक टू गर्ल डायमेंशन इक्वलिटी। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये सारे आपके इक्वल हो जाएंगे। इसी तरीके से मैं इधर भी करता हूँ इस तरीके से। इनको इक्वल करने के लिए इधर आ जाएं, देखिए इस पर अब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे। बस इसको आप ले लें, यहाँ से डिलीट कर दें। अब बारी आती है आपकी स्टेयर पाथ की, तो आप यहाँ दरमियानी जैसा लेंगे, यहाँ तक ला के और सीधा अप, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए 15 वो हमारे जो हैं स्टेप्स आ चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से जो हम बनाना चाह रहे थे इस तरीके से आ गए हैं। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, हम अपने काम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप आ जाएं तो ये देखें जैसे मैंने अभी यहाँ पर डायमेंशन ली थी उसी के हिसाब से मैं इस पे रन पे क्लिक करेंगे यहाँ पर स्ट्रेट पे, और आप यहाँ एडिट टाइप पे आ जाएंगे। तो मैं इसकी स्क्रीन को थोड़ा सा छोटा करके साइड पे ले आता हूँ, और अब इस यही वाली हम डायमेंशन, पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ, सिंपल स्टेयर का नाम दे देता हूँ डुप्लीकेट करके। स्टेयर्स पे क्लिक करने के बाद आपकी जो जो ये वाली जो विड्थ है ये है 3 फीट 9 इंच। तो जो रन विड्थ है यही वाली आपकी विड्थ है, तो इसको मैं 3 फीट और 9 इंच कर देता हूँ, ये हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये जो जो ये वाली थी डेप्थ थी जो इसकी 1 फीट थी, तो इसको आप चेंज कर दें 1 फीट पे। और फ़र्ज़ करते हैं आप चेंज के हिसाब से अगर लगाना चाहते हैं 7 इंच के हिसाब से, तो ये अभी आप पे है कि आप किस तरीके से उसकी काउंटिंग करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा तरीका बता देता हूँ। मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेटर ओपन करूँ, ऐसे रिविट आपको साइड में बता रहा है डिज़ायर्ड नंबर ऑफ स्टेप्स, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं, कोई इसकी क्रॉस वो करना चाहते हैं, फर्स्ट करते हैं 11 फीट हमारी छत की हाइट है ग्राउंड फ्लोर से, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इंचज़ में लाने के लिए। तो मैं इसको 12 पे तक मल्टीप्लाई कर देता हूँ, आपके पास 132 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड कर देंगे कितने के साथ, 6 इंच के हिसाब से अगर करना चाहते हैं तो आपके पास 22 स्टेप्स आ जाते हैं। अगर इसी
132 को मैं तकसीम कर देता हूँ 7 के साथ, तो ये आपके पास 18 स्टेप बता रहा है, यानी कि 7 इंच के हिसाब से ये हमें 17 स्टेप बता रहा है। अगर मैं इसको 7 से 6 कर देता हूँ, फ़र्ज़ करता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो ये देखिए अभी ये हमें 20 बता रहा है, डिज़ायर नंबर जो है स्टेप्स हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, जो ये आपके पास ये जो लाइन है, यहाँ से हम पहले अपनी स्टेयर बनाएंगे। आपने इस ग्रीन लाइन को ये देखें तो इसके पास यहाँ पर हमारे पास एक ये मिड पॉइंट आपको बताएगा रिवेट, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। ये देखें ये यहाँ पर ला के और इसको इधर छोड़ देना, ये एक स्टेप हो जाएगा। ठीक हो गया। दूसरा जो स्टेप होगा वो यहाँ से आपके इस लाइन पे होगा। एक मिनट मुझे देखने दें। हाँ, तो ये इधर से मिड पॉइंट से आप ले लें। ठीक है, ये देखिए पीछे पहले से वो बना रहा है हमारे पास जो लैंडिंग है, तो ये इधर से ला कर आप इधर तक ले आएँ। जैसे इधर लाते हैं इसको क्लिक कर दें तो पीछे देखिए ऑटोमेटिकली इसने जो जो एक छोटी सी लैंडिंग इधर थी वो इसने क्रिएट कर दी है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो इसका एक मिड पॉइंट यहाँ से ले लें, जो जैसे कि ये इसका मिड पॉइंट है। तो ये देखिए ये पीछे से पहले से अपना वो बना रहा है, कनेक्शन बना रहा है, ये इधर ये हो गया। फिर यहाँ से आ जाएं तो यहाँ पर भी आपका एक मिड पॉइंट है, इधर से ले लें इस तरीके से। अगर मैं यहाँ तक क्लिक करता हूँ तो ये आपके 20 स्टेप्स यहाँ पर पूरे होते हैं बकौल इसके, लेकिन आपकी ऑटोकैड फाइल में काउंटिंग थोड़ी गलत हुई हुई है। ठीक है ना। तो ये यहाँ तक अगर जो रेविट जो जो आपके पास जो काउंटिंग करता है वो गलत नहीं होता, लेकिन अब ऑटोकैड फाइल में आगे भी स्टेप्स बताए गए हैं। अगर आप वो बनाना चाहते हैं तो ये भी आप फर्ज करते हैं काफ़ी है, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इधर से क्लिक कर दें। अगर मैं फ़र्ज़ करता हूँ ये दो स्टेप्स मैं नहीं बनाना चाहता तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ वापस अपने इसी उसमें इस एरिया में। तो ये देखिए पीछे से इसने एक कनेक्शन बना दिया है। मैं यहाँ पर एक और लैंडिंग रखना चाह रहा हूँ, बीच में बस एक लैंडिंग आ गई और आपके स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अच्छा, ये डिज़ायर नंबर 20 से हमने 23 बना दी, तो फिर इसको आप लाजमी चेंज कर दें तो 23/23 जो आपकी जो काउंटिंग है वो एग्जैक्ट आ जाएगी। अब अगर मैं इसको ओके करूँ तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर 3D में। तो 3D में अगर आप चेक करें तो ये आपके स्टेयर्स जो हैं वो इस तरीके से बनेगी। यहाँ से ये कटा हुआ है इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो जो इसकी ये जो हैंड रेलिंग है, क्योंकि ये आपके पास जो है ना वो है सेक्शन बॉक्स हमारा ऑन है, नहीं दे रहे हैं बस। अच्छा, ये जो हैंड रेलिंग है ये मैं इधर से एक हटा देता हूँ और आप आपकी अब मर्ज़ी। अच्छा, ये हैंड रेलिंग आप अपनी मर्ज़ी की भी रख सकते हैं। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर। यहाँ पर आ जाएँ तो ये देखिए थोड़ी बहुत आपके पास हैं, ये बेम ऑब्जेक्ट से हैंड रेलिंग आप लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, डाउनलोड कर लें। तो जो जब आप डाउनलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। बॉटम फिल में मैं बॉटम फिल करना चाहता हूँ तो इस तरीके से बॉटम फिल आपकी आ जाएगी। मैं सेक्शन बॉक्स हटाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पहले सेक्शन बॉक्स नहीं हटाऊँगा, बल्कि मैं क्या करता हूँ कि मैं दोबारा फ्रंट पे क्लिक करके यहाँ पर क्लिक करके और इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ। तो ये अब क्या होगा, मुझे यहाँ पर बताएगा कि कौन सा एरिया है। ठीक है। अब मैं इसके ऊपर एक शाफ्ट कमांड लगाना चाह रहा हूँ, तो शाफ्ट कमांड आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, 3D में भी लगा सकते हैं। शाफ्ट कमांड का काम क्या होता है कि वो सिर्फ उस एक ओपनिंग क्रिएट कर देता है। अगर आप उसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा, वो वाला हिसाब नहीं होगा कि आपने बाकायदा फिर एडिट बाउंड्री फ्लोर में करनी है, और वो वाला हिसाब नहीं। बट डिलीट कर दें सिंपल डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर ये हो जाएगा और इस तरीके से मैं एडिट बाउंड्री या इस तरीके से ये मैं इधर तक ले आता हूँ। इसको मैं ओपन करता हूँ यहाँ से, इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा और यहाँ पर इसको मैं ओके कर दूँ तो ये आपके इस तरीके से 3D में लग जाएगी। तो ये देखें अब आपकी जो इसको आप नीचे तक अगर लाना चाहें तो ये फिर ये नीचे से इस तरीके से काट देगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं रखना चाहते तो मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक हो गया। तो ये देखें अब यहाँ पर इस तरीके से आप इसको दोबारा एडिट कर सकते हैं, इधर ही कर दें बेशक। इसको मैं एडिट स्केच कर देता हूँ। ये देखें अब मुझे थोड़ा सा इसको ओपन करना चाह रहा हूँ तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से इसको क्लिक करके इधर तक ले आता हूँ। ठीक हो गया। इसको मैं क्लिक करके यहाँ तक या इस नॉर्मल एरिया तक और
یہ والا جو ایریا ہے اس کو میں سیدھا یہاں تک لے آتا ہوں. یہ لائن میں نے لے لی ادھر سے, یہ میں نے کلک کر دیا یہاں تک, اور اس لائن کو میں اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہوں یہ والی, بلکہ میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم نے یہاں تک اس کو لایا تھا. الائن کر لیتا ہوں اس لائن کو, اس کو میں کلک کر دیتا ہوں اس لائن کو, اس کو میں اس سے یا وہ پک نہیں کر رہا. ٹرم اینڈ ایکسٹینڈ کمانڈ کو استعمال کر لیتا ہوں, ان کے درمیان ایک بونڈ بنا دیتا ہوں اس طریقے سے. تو یہ آپ کی جو آپ کی جو شافٹ کمانڈ ہے وہ اس طریقے سے اوپن ہو جائے گی, اور آپ کو اس طریقے سے بالکل کلیئر دکھ جائے گا. ٹھیک ہو گیا, تو بس اسی کو یہ آپ اوکے کر دیں. یا میں یہ جو شافٹ کمانڈ ہے اوپر تک اگر ایکسٹینڈ کرنا چاہوں اس طریقے سے, اور اگر میں اب سیکشن باکس کو کلوز کرنا چاہوں تو اس طریقے سے کلوز ہو جائے گی, اور آپ کا جو آپ کے جو یہ سٹیئرز ہیں تو وہ اس طریقے سے آپ کو اوپن شو ہوں گے نیچے سے اوپر تک. ٹھیک ہے, یہ صرف اس ایریے کو کاٹتا ہے. اور باقی جو رہی بات اس کی سٹیئرز کی, اگر آپ مزید سٹیئر بنانا چاہتے ہیں تو یہ خواری کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسی طریقے سے اوپر بھی چاہیے تو بس سمپل کاپی کر دیں, یہاں سے پیسٹ پہ آ جائیں, لائن ٹو سلیکٹڈ ڈرائیور کر دیں. ہم نے گراؤنڈ فلور سے گراؤنڈ فلور سلیب تک کیا, فرسٹ فلور سے مجھے گراؤنڈ فلور سلیب سے فرسٹ فلور تک چاہیے, تو ادھر کلک کر دیں تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس دوسری سٹیئر اس طریقے سے کریٹ ہو جائیں گی. تو یہ آپ کا اس طریقے سے یہ دیکھیں بالکل ایگزیکٹ یہاں سے, یعنی آپ کا وہ ہم نے چونکہ شافٹ کمانڈ لگائی ہے تو یہ آپ کو نہیں دیکھے گا. یہاں سے آپ کا سلیب اوپن ہوا ہوا ہے, اور یہاں سے آپ کا دوسری سٹیئرز اوپر کی جانب جا رہی ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو یہ ہمارا آج کا وہ تھا. میں اس کو یہاں تک نیچے تک لے آتا ہوں, میں اپنی جو ریکارڈنگ ہے اس کو میں